आज का हमारा एक स्पेशल प्रोजेक्ट मिला है हमें क्रिसमस के लिए। बेसिकली डॉन बॉस्को हाई स्कूल है, वहाँ पे उनका खुद का एक यूथ शेल्टर भी है। तो प्रोबेबली आज हम वहाँ ही जा रहे हैं और वहाँ के यूथ से हम थोड़ा बात करेंगे एंड देखेंगे कि हाउ डू दे सेलिब्रेट क्रिसमस इन देयर ओन वे। और काफ़ी सारी नई स्टोरी शायद वहाँ पे आज अनकवर हो जाए। लेट्स सी आज हमारे लिए क्या है पूरे दिन में। Good evening, everyone. I am here at the Don Bosco Youth Shelter event. Today I am here with Father Rudolph, and I think he will be the right person to guide us through the event or what all activities are planned here for the people and what is happening over here. So, let's hear from him. Okay, so good evening, everybody. My name is Father Rudolph, and I'm the director at Shelter Don Bosco. We are here at Don Bosco High School, Matunga, conducting a Christmas Dhamaka program for the destitute and street youth. These are people, as you can see around, who are literally from the streets. And the reason why we are having this kind of a celebration for these people are because they would not get this opportunity elsewhere. When we talk about a Christmas party, we think about children, we think about school children or some other youth somewhere, but we never think about people who are actually on the streets. And through this Christmas Mela, it is not that we are just bringing them over here, giving them an opportunity to enjoy this festivity or to enjoy the celebrations, but we also want to spread the message of inclusivity and the Christmas message of getting people together and the message of giving. Okay, we who are privileged have the obligation, okay, the obligation given by nature to share with those who don't have, and that is what is exactly happening over here. You can see there are children, there are women, there are men, but all of them are lacking the opportunities that other normal people have, and we want to give them much more than we can offer. And through this little gesture of this Christmas Mela, we want to share the Christmas joy with them. And that is the idea behind this Christmas Dhamaka that we have for them. Father, I would like to know more. Jैसे we spoke on the phone, so you told me that there are also intake of people happening over here. So, how does that proceed? Can you guide through if anyone is watching and they might be interested to join you? Okay. Because this is a Christmas month, and that is why we are having it on a grander scale. But this Mela is something that happens at Shelter Don Bosco every month on the 20th of every month. And what happens at each Mela is there are some boys who express a desire to stay with us. They say, Father, हमें एक चांस दीजिए, हम आपके साथ रहकर कुछ सुधारना चाहते हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं, whatever it is. And these are the boys that we follow up over 3 or 4 melas. Then we also follow them out while they're on the streets and we see how they're progressing. If they're really serious and authentic and they really want to change their life, we give them an opportunity to come and stay with us at Shelter. And while they are staying with us, we try some kind of counseling, detox, rehabilitation process, and all, helping them to get back on their feet and to be included back in the society again. So I think, Father, that you have been doing this from a lot of years and maybe Yes. decades. So I think there might be a lot of good stories here around. So I think I am here to capture that as well. So thank you, Father, for this opportunity. See you soon. Yes. Yeah. All the Thank you. best. Thank you. बॉस्को 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 अरे बॉस्को 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 गुड इवनिंग एवरीवन। मैं यहाँ पर गणेश के साथ और विनोद के साथ हूँ। तो गणेश, आप कब से रह रहे शेल्टर रूम मेरे में? को लास्ट 15 इयर्स हुआ यहाँ पे रह के, और अभी तक हूँ हॉस्टल में अभी। तो आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि शेल्टर होम और घर में मतलब क्या डिफरेंस होता है, या शेल्टर होम में आपको क्या बेटर हो जाता है? देखो, शेल्टर होम घर से बेटर रहता है, उसमें एक ऐसे एक्सपीरियंस लाइफ मिलती है जहाँ पे मीन्स खुद को हम डेवलप करते हैं, जो पर्सनालिटी थी उस पर डेवलप रहते हैं, और खुद के दम पे अपन बाहर मीन्स 18 इयर्स होता है तो अपन रेडी रहते हैं उसके लिए, और उससे क्या है खुद से सब करने रहता है। तो अभी से वो हॉस्टल ऐसा रहता है जो खुद को रेडी करता है हम पहले से ही, तो सब कुछ हैबिट हो जाएगी। तो फिर आगे जाके 18 इयर्स के बाद जब अपन खुद के घर पे रहते रेंट पे, हाँ। तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि हैबिट हो चुकी है सब खुद से करने की। मतलब शेल्टर होम अगर मैं बोलूँ तो आपको प्रिपेयर कर देता है आगे लाइफ के लिए। यस, वो है। और विनोद भाई, आप? मेरा नाम विनोद है, मैं इधर 2 साल से रह रहा हूँ। मैं शेल्टर ऐसा चीज़ है, मतलब जरा अपन रहते हैं, मतलब घर से अच्छा है क्योंकि इधर
सब सुविधा मिलता है, पढ़ाई से लेके खेलने तक। तो घर पे कैसा अपन मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता, शेल्टर में कैसा दोस्त लोग भी रहते हैं, फादर है, ब्रदर है, सब संभालने वाले हैं, तो पढ़ाई भी हो जाता है आगे पीछे और जॉब भी हो सकता है पीछे आगे ऐसा। तो अभी जैसे अभी आप कितने साल के हो? मैं अभी 18 ईयर्स ओल्ड हूँ। आप 18 ईयर्स, आप गणेश? मैं 20 अभी रनिंग है। तो आप 20 हो अभी, मतलब आपने आगे के लिए अपने लिए कोई फ्यूचर प्लान्स बनाए हैं? मतलब आप क्या सोचते हैं आगे के लिए? फ्यूचर प्लान तो बना है, मीन्स अभी तो कॉमर्स कर रहा हूँ, तो मेरा ड्रीम है कि बैंकिंग में जॉब अच्छा, आप चाहिए। अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो? हाँ, कौन से कॉलेज में हो? डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज FY BCom कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में अभी। ओके ओके। तो ये जो कॉलेज का एक्सपेंस वगैरह होता है, ये शेल्टर प्रोवाइड करता है आपको? हाँ, अभी कॉलेज ही मीन्स क्या बोलते हैं, हॉस्टल ही प्रोवाइड करता है। मीन्स अभी 18 प्लस हो गए तो क्या कुछ पार्ट टाइम मीन्स हॉस्टल से अभी क्या हो गया कि सब अभी हॉस्टल देते, तो थोड़ा हम लोग खुद से भी इनकम करते पार्ट टाइम जॉब वगैरह करके, तो उससे क्या वो खुद के सेल्फ के लिए यूज होता है, बाकी जो फीस रहता है हॉस्टल पे करता है। किस तरीके का पार्ट टाइम जॉब करता है, अगर आप कुछ बताना चाहें तो? मीन्स पार्ट टाइम जॉब लाइक इवेंट, फिर मेडिसिन, वो ऑन क्या बोलते हैं डिलीवरी और भी बहुत वगैरह इस ओके ओके, मतलब आप खुद से भी काम करते हैं ताकि आप थोड़ा और पैसा जमा कर पाए और फीस भर पाए। तो अभी जैसे आपने मुझे बताया था कि मॉम घाटकोपर में रहते हैं, आप यहाँ पे रहते हैं, तो आप मॉम से मिलने कितने टाइम में जाते हो? मीन्स मैं मंथ में सेकंड संडे जाता हूँ जब भी मिलने जाता हूँ। और मॉम मैनेज कर लेते हैं आपके बिना? हाँ, हो जाता है मैनेज, मीन्स अभी क्या हैबिट हो गई उनको भी, तो मेरे को भी हैबिट हो गई है। मीन्स ऐसा क्या होता है कि फील होता है, पर अभी हैबिट हो गई तो होता है मैनेज। विनोद भाई, आप मुंबई से ही हो? मैं यूपी का हूँ, पर अच्छा। मेरे को इधर बचपन से मतलब मेरे पापा ने बचपन में मुंबई लाया था। हाँ। मेरी माँ गांव में थी। हाँ। तो फिर अभी इतने साल हो गए, फिर हम लोग भी मम्मी को मुंबई में लेके आ गए। अभी मेरी मम्मी मुंबई में ही है। आप फिर अभी आप कुछ काम कर रहे हो पार्ट टाइम, की आप शेल्टर में ही हो? नहीं, मैं काम जॉब तो नहीं करता, पर प्राइवेट कॉलेज करता हूँ 12th में, और मैं सुबह पेपर न्यूज डालता हूँ, पेपर लाइन। हाँ, पेपर डालता हूँ। कौन से एरिया में? इधर पे अपना एंटाफिल साइड, मतलब दोस्ती एंटाफिल, ये सब मेरा एरिया, चिंदी गली, ये सब पेपर में डालता हूँ। तो फिर आप लोग का दिन का मतलब अगर स्केड्यूल हम पूछे तो कैसा रहता है शेल्टर होम में? अभी मैं सबका अलग रहता है, सुबह 7 बजे उठते, पर मेरा अलग है। मैं सुबह 4:45 को उठता हूँ, फिर जाता हूँ पेपर लाइन डालने, फिर मैं आता हूँ 7 बजे तक, तो जुम्बा वरना योगा होता है शेल्टर में। फिर 8 बजे ब्रेकफास्ट होता है, मतलब खाने का टाइम होता है। फिर उसके बाद 9:30 तक होता है सब कुछ, बाद में असेंबली रहता है, आधे घंटे का असेंबली रहता है बाद में। उसके बाद से 9:30 से लेके 12:30 तक स्टडी टाइम होता है, पढ़ाई का टाइम। फिर बाद में फ्रीडम रहता है। फिर खाना खाने के बाद 1 से लेके 2 तक टीवी देखते हैं, बाद में सब मिलके? सब साथ में रहते हैं, कोई फोन में रहता है, कोई टीवी देखता है, ऐसा मिलजुल के रहते हैं। अंकल, आपका नाम? मार्टिन मार्टिन। तो आप रहने को कहाँ पर हो? वडाला वडाला में। तो आपको ये प्रोग्राम के बारे में किस तरीके से पता चला? साफा ग्रेसी मम्मी के जरिए। अच्छा, तो कैसा लग रहा है, मतलब आप ये कैसा लगता है आपको, कैसा है ये इवेंट बच्चों के लिए, या समझो जो नए लोग हैं जो रोड पे रह रहे हैं उनको ये लोग एक शेल्टर दे रहे हैं, तो आपको क्या है, मतलब आपके विचार क्या है इस बारे में? जो हम लोग को रहने के लिए काफ़ी मदद मिलती है वहाँ से, और ग्रेसी मम्मी हम लोग को फॉलो करती है। हाँ। हम लोग रोड पे रहते हैं, हम लोग को कुछ तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो सॉल्व करते हैं ग्रेसी मम्मी। तो मतलब जो शेल्टर होम वाले वो आप लोग की भी हेल्प करते हैं? जी हाँ, फादर भी हमारी मदद करते हैं। किस तरीके से हेल्प करते हैं? जैसे दवा पानी या खाने के लिए या कुछ भी ऐसा चीज़ लगती है तो देते हैं हम लोग को। तो आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हो जो शेल्टर में रह रहे हैं? सेंटर में तो ऐसे काफ़ी लड़के लोग हैं, पर वो कम उम्र वालों के लिए। हाँ। हम लोग जो बड़े हैं तो उनको रोड पे रहते हैं, तो हम लोग हर 22 तारीख 20 तारीख को मेला होता है, तो उसमें हम लोग प्रवेश होते हैं। तो वो मेले में फिर आप लोग को ऐसा अच्छा लगता है, मतलब एक घर वाला फीलिंग आता है? जी हाँ। ओके ओके, थैंक यू दादा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सो गाइज, हमारा इवनिंग आखिरकार ख़त्म हो चुका है। अभी भी इवेंट चल रहा है, बट वी हैव टू रश समवेयर। बट दिस वाज द बेस्ट इवनिंग आई हैव एवर स्पेंट। हमने बहुत लोगों से बात की, बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया, जैसे उसमें से एक गणेश था, एक विनोद था। सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज़ है,
बट इतना पता चला कि यार इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी वो शेल्टर में एक दूसरे के साथ रहते हैं, नए स्किल सीखते हैं, मेहनत कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर, कोई स्कूल पढ़ रहा है, कोई प्राइवेट 12th दे रहा है, बट उनमें वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है, मतलब वो लोग चालू है यार अपने स्ट्रगल के लिए। सो आई थिंक दिस वॉज अ वेरी ग्रेट क्रिसमस, और आगे शायद इनके साथ और भी बड़े प्रोग्राम बने, हमारे कुछ और इवेंट्स प्लान हो, तो जैसे भी जो होगा आई विल लेट यू नो। एंड वन मोर थिंग, ये तो आज क्रिसमस था इसलिए इतने बड़े पैमाने पे इनका गेट ओपन है, बट एवरी मंथ ऑन द 20th of every month द डॉन बॉस्को यूथ शेल्टर हैव देयर गेट्स ओपन फॉर all the youth who want to enroll themselves into their center. They just keep an eye on you for 2 or 3 months and they check whether if you are a good fit for the the shelter or not. So जो भी अगर youth ये देख रहा होगा from the streets and you want some help, so I would request you to reach out to the Don Bosco Youth Shelter. See you soon. Thank you.